to making bonds, the very first question I ask my students is why do elements make bonds? Okay, elements make bonds to achieve nearest noble gas configuration. What is bond? It is the सबसे पहले ये bond होता है. It is an interactive force between the elements by sharing or transfer of electron. So do you get the meaning of bond? Bond होता क्या है? It is the attractive force between the elements जो कि either by sharing of electron होता है or by transfer of electron. This takes us to the next point that there are two types of bonds that we study, three types of bonds that we study in this subject. That is covalent bond, ionic bond, and metallic bond. The bond between non-metals and non-metal is ionic bond, covalent bond. The bond between a metal and a non-metal is an ionic bond, and the bond between metal and metal is metallic. ठीक हो गया? Let's start with the covalent bond. Covalent bond is formed by sharing of electrons. What are non-metals? Non-metals start होते हैं probably from group 5 to 7 on. ठीक है, उनमें भी certain categories आती हैं. Non-metals are non-metals because non-metals जो हैं they accept electrons instead of losing electron. ठीक है. अब non-metals group 5 to 7 से start होते हैं. Group 5 means they need 3 electrons up till 1 electron, which is group 7. ठीक है. Non-metals, as they only accept electron, so the kind of bond they make is covalent bond, which is the sharing of electrons between two non-metals. I normally ask my student to memorize at least one example so that if there comes a question where they ask you what kind of a bond between metals and non-metals or this type of a question आ जाए, you must remember at least one example for each. Covalent bond के लिए मैं students को बोलता हूँ वो याद कर लें, ठीक है. Ionic bond के मैं कहता हूँ NaCl को याद कर लें. एंड मेटालिक बॉन्ड के लिए हमारे पास कोई भी मेटल का बॉन्ड कॉपर के बिटवीन बने या एनी मेटल इन बिटवीन जो बॉन्ड बने उसको बोल. नाउ डू यू गेट द मीनिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? Covalent bond is a sharing of electrons between Between two the elements non-metals. to achieve the nearest noble gas configuration. Why do we call it nearest noble gas configuration achieve करने? Because this is the जो noble gases होती है वो क्या होती है, अपनी स्टेबल स्टेट में होती है. एंड एवरी एलिमेंट टेंड टू स्टे एज अ स्टेबल एलिमेंट फॉर्म में. स्टेबल एलिमेंट वो कब बनता है? जो अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करता है. ठीक है. और वो आपने केमिस्ट्री के अंदर एनएमओस में होते हैं, then 8, 18 and so on. तो आपका रेशियो होता है. And back to covalent bond. Covalent bond is formed by sharing. So sharing में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड में भी ना फर्दर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं. सिंगल बॉन्ड, Double bond, triple bond. and triple bond. टेडी, अगर हम इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का ईच शेयर कर रहे हैं तो वो सिंगल बॉन्ड होगा. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ईच शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड होगा. अगर हमारे पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच शेयर हो रहे हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल H एंड H के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड होगा. डॉट एंड क्रॉसिंग को डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स कहते हैं. अगर हम ऑक्सीजन के क्रॉस बनाएंगे बॉन्ड्स को तो वो मेरे पास कौन सा डबल बॉन्ड होगा. दैट इज 2 ऑक्सीजन के एटम्स, they each would share 2 electrons to make the outermost shell.
मेक श्योर कि आपने जब भी बॉन्ड्स बनाने हैं, यू नीड टू शो द शेडिंग all the electrons. That is, oxygen belongs to group 6, so it must have 6 electrons in its outermost shell, out of which 2 they have shared with each other. They will be left with 4 electrons, which are not making any bonds. हमने उनको शो करना है साथ में, ठीक है? ये मिस्टेक नहीं करनी कि हम सिर्फ शेडिंग वाले बॉन्ड्स को शो करें. एंड ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मली नाइट्रोजन या ग्रुप 7 जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं वो करते हैं. एंड फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एज बिलोंग्स टू ग्रुप 5. दिस मींस कि उनके आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, व्हिच मींस 2 उनके पास पेयर बचेंगे और 3 को वो आपस में क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे. तो दिस काइंड ऑफ अ बॉन्ड वुड बी. बाकी इसमें आपको इसके अलावा कुछ नहीं आना, कोई क्वेश्चन नहीं आता. आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, ठीक है? कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं बिटवीन द, उन्होंने जो भी स्ट्रक्चर बना के दिया होगा, बस हमें ये याद रखना है उनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हमने करने हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है हमने, सो कार्बन हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन आ जाएंगे, ठीक है? अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ग्रुप 4 से बिलोंग करता है तो 4 होंगे, तो वो 2-2 अपने शेयर कर लेगा ईच ऑक्सीजन के साथ. एंड ऑक्सीजन भी अपने 2-2 जो है वो शेयर करेगा. आप देखो कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. कार्बन के पूरे हो गए. अब हमें ऑक्सीजन के पूरे करने हैं. ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी अभी हमने बात की 6 होते हैं, तो 1 2 3 4. अब ये 4 ये हो गए, 4 ये हो गए. ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए एंड इस ऑक्सीजन के भी 4 हो गए. आपने हमेशा जब भी स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, आपने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है 8, और वो शेयरिंग के बाद 8 कंप्लीट होंगे. और उनके हाउ वुड वी नो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाने हैं, कितने शेयर करने हैं? वो हमें उनके ग्रुप नंबर से पता लगेगा, ठीक है? अगर ग्रुप 5 से है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. अगर वो ग्रुप 6 से है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. अगर वो ग्रुप 7 से है तो इंडिविजुअली वो कितने को शेयर करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. So these are the few parameters which you need to keep in your mind when it comes to these questions. And then हमारे पास क्वेश्चन आता है कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, ठीक है? When it comes to कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. एंड इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? कंपैरेटिवली लो होते हैं. और कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उनको भी हम लोग अपने माइंड में रख सकते हैं. अच्छा 2 पॉइंट्स हो गए. सॉरी मैं यहाँ लो लिखना भूल गया था. क्योंकि उनकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है तो उस वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं. नॉर्मली कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है? water soluble, not water soluble, but could dissolve in organic solvents. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कार्बन बेस्ड सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है? एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास ये होता है कि दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड चूंकि ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, कि किस पे डिपेंड करे? इस पे, क्योंकि ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे आर insoluble in water and they cannot conduct electricity and they are normally volatile. ठीक है? वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो इजीली जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इवेपोरेट बहुत इजीली हो जाते हैं. वोलेटिलिटी उस बेसिस पे डिपेंड करती है. सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास जो होते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन कम्स आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड में हमारे पास आयनिक बॉन्ड किसके बिटवीन बन रहा था? मेटल एंड नॉन मेटल में. NaCl. Oh, sorry. एंड कंप्लीट ट्रांसफर होता है.
जब भी हमें आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, फॉलोइंग थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन, फॉर एग्जांपल हमें NaCl के इन बिटवीन बनाना है, ठीक है, व्हिच मींस कि Na बिलोंग्स टू ग्रुप 1, व्हिच मींस उनके आउट मोशन में कितने होंगे? 1. 1, ठीक है। वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। और क्लोरीन के अपने शेल में कितने होंगे? वो ये क्रॉस शो करेगा कि ये सोडियम से आया हुआ है। बाकी सारे किस में बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। एंड वी नॉर्मली ड्रॉ ब्रैकेट्स अराउंड द एलिमेंट्स और शो करते हैं उसके ऊपर उनका चार्ज। इसने एक गेन किया या नेगेटिव वन शो करेंगे, इसने इसको एक को लूज किया तो पॉजिटिव वन को शो करेंगे। और जब हम पॉजिटिव वन लिख देते हैं ना, फिर हम उसका आउटर मोशन कंप्लीट शो करते हैं वहां, ठीक है, जब हम पॉजिटिव साइन शो कर देते हैं यहाँ पे। तो आउटर से इनर मोस्ट शेल हमेशा क्या होगा? आउटर से इनर मोस्ट शेल हमेशा क्या होता है? कंप्लीट होता है। ये तो हमने केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ तभी जाता है जब पिछला ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर MgCl2 के अक्रॉस बन रहा है, विच मीन्स नाउ मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप 2, विच मीन्स मैग्नीशियम का हम बनाएंगे, मैग्नीशियम का आउटरमोस्ट शेल हम पूरा कंप्लीट शो करेंगे, आउटरमोस्ट सॉरी आउटर से इनरमोस्ट, एंड देन हम ब्रैकेट पुट करेंगे एंड वी वुड शो अ पॉजिटिव 2 साइन अक्रॉस इट, ठीक है। एंड देन वी विल ड्रॉ 2 क्लोरीन सर्कल्स, एक क्रॉस इसमें और एक क्रॉस इसमें शो करेंगे, ठीक है। बाकी सारे क्या बनाएंगे? सर्कल्स। Always make sure you have shown a complete outline. तो इसमें माइनस बना गया, इसमें माइनस। फॉर एग्जाम्पल HCl का सर्किट बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। HCl के उसमें क्या होगा हमारे पास? अब आप मुझे बताएं कैसा स्ट्रक्चर बनेगा हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का एक शेल बनेगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर क्लोरीन का होगा या नहीं एक होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। के पास होता ही पान है, तो हम उसका शेल हाँ जी। एम्प्टी छोड़ देंगे और क्लोरीन में एक क्रॉस शो कर देंगे, बाकी सारे का बना देंगे सर्कल्स। To differentiate the electrons coming from different elements, we can take help of other shapes as well. अच्छा, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमारे पास जो है स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मली ना कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर आता है, बिकॉज हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो हम उसमें सॉरी आई मेड द रॉन्ग स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन में हम ये नहीं बनाए, हाइड्रोजन में हम लोग कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाए, दैट इज शेयरिंग बिटवीन अ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। It would go something like that. It would be a shading between a hydrogen and a chlorine. So एक dot and एक cross and बाकी सारे cross बनाते हैं. This shows के one chlorine एक chlorine की तरफ से शेयर हुआ, एक हाइड्रोजन की तरफ से शेयर हुआ. बाकी आयनिक बॉन्ड का मीनिंग समझ में आ गया. इट इज अ शेयरिंग बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, सॉरी शेयरिंग नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल. स्ट्रक्चर्स हमेशा ऐसे बनाने हैं. और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट होंगी, व्हिच मींस पहला पॉइंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सेकंड पॉइंट क्या होगा? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तीसरा पॉइंट क्या होगा? वाटर सोलुबल. फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या होगा? दे कुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो वाटर सोलुबल है. और जब सोलबिलिटी होगी ड्यू टू दैट अब देखो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जब एग्जिस्ट कर रहे होंगे दे कुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. And the last point the last type of bond that we discuss is the metallic bond. Metallic bond की definition अक्सर exams में आ जाती है. So you should keep this in your mind. The metallic bond is defined as the bond between a positive
atom and a sea of electron. So, positive ion and sea of delocalized electron. ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ सी। अब देखो डिफरेंस नॉर्मली पूछते हैं कि मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। मेटल का जो बॉन्ड होता है इट इज अ बॉन्ड बिटवीन अ पॉजिटिव एटम एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयरएज आयनिक बॉन्ड किसके दरम्यान में होता है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इसमें आइंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन होते हैं आयनिक बॉन्ड में। एंड मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगेन फिर मेटालिक व्हेन इट कम्स टू मेटालिक बॉन्डिंग तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हमारे पास हाई होते हैं, कंडक्टिविटी भी होती है, मेलिएबल एंड डक्टाइल भी होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, malleable and ductile and conduct electricity.